students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are starting with the chapter 7. This is a new chapter and this is session number 1 for this chapter. This chapter's name is Our Natural Resources, Water and Soil. So, in previous chapter we learned regarding our natural resources, forest and wildlife. So, first thing, what do you mean by natural resources? Anything which we get from nature or it is God gifted, that things are called natural resources, correct? Now, natural resources are of two types, exhaustible and inexhaustible. So in our previous chapter we learned regarding two natural resources, that is forest and wildlife. In this chapter another two natural resources, that is water and soil, we are going to discuss regarding these two resources. Okay, now let us start with the water as a natural resource. Why water is a natural resource? Because water is not man-made thing. Water we get from nature. The main source of water is rain. So let us start the chapter. It is given in page number 305 in your textbook. Water is very important for all living things. Correct? We use water for different purposes. We need water for drinking, पीने के लिए, bathing, नहाने के लिए, cooking, कुक करने के लिए, खाना पकाने के लिए, washing, कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए, एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. इन सारी चीजों के लिए हम वाटर का यूज करते हैं. वी नो दैट 3/4 of the earth's surface is covered with oceans. 3/4. See here I have drawn one, then I cut it into 4 parts and 3 parts of it, that is 3 parts of the earth is covered with water. Only 1 part, whatever is left, it is land area. So 3/4 is covered with oceans. But most of this water is salty and not fit for either drinking or cooking. But ये जो oceans का water है या sea का water है, it is salty, खारा पानी होता है. So it is not fit for cooking and drinking. इसीलिए उसमें से खाना पकाना या उसमें पानी पीने के लिए वो अनफिट होता है. क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड, नो, इट इज नॉट फिट. फ्रेश वाटर विच इज यूज्ड बाय अस एग्जिस्ट इन. फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी या जो पानी जिसमें टेस्ट नहीं होता है, इट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर. सो दिस फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. इन सारे के सारे में हमें फ्रेश वाटर मिलता है. नाउ आवर मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन. ये रिवर, पॉन्ड, लेक या स्ट्रीम, इसमें से फ्रेश वाटर मिलता ही है. बट ये रिवर, पॉन्ड, लेक या स्ट्रीम है, उसमें कहां से आता है ये फ्रेश वाटर? इट इज फ्रॉम रेन. क्योंकि जब रेन का वाटर आता है, व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस, this water is accumulated in river, pond, lake, etc. करेक्ट? तो ये सारा पानी जो वाटर आता है रेन से, वो इसी में रिवर में, पॉन्ड में, लेक में जमा होने लगता है. तो इस वजह से इन सारे सोर्सेस में पानी आता है. तो मेन सोर्स क्या हुआ? मेन सोर्स इज रेन. करेक्ट? रिवर किस में से, रिवर में पानी कहां से आता है? रेन में से आता है. लेक में कहां से आता है? रेन में से आता है. पॉन्ड में कहां से पानी आता है? रेन में से. सो द रेन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. इन इंडिया फार्मर्स डिपेंड ऑन मॉनसून रेन्स फॉर देयर क्रॉप्स. इंडिया में फार्मर्स जो है वो अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बारिश मतलब रेन पर डिपेंडेंट रहते हैं. करेक्ट? बट रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया. बट पूरे इंडिया में, पूरे जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसमें अलग अलग लैंड फॉर्म्स है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्टल एरियाज है. तो इन सारी जगहों पर एक जैसी बारिश होती है? नो, इट डिफर्स. तो मॉनसून डिफरेंट है. अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग मॉनसून होती है. कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं कहीं बहुत कम बारिश होती है.
Some places get lot of rainfall while other places receive very little rain. कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर जो है वो बहुत कम बारिश होती है. Moreover, the monsoon provides rain only for few months in a year. Monsoon जो है वो हमारे यहाँ few months के लिए होती है. Monsoon क्या throughout the year 12 months of the year बारिश होती है? No. कितनी सीजन है? समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग. तो उसमें मॉनसून सिर्फ एक पार्ट है. ये 5 सीजन में से सिर्फ एक सीजन का नाम मॉनसून है. तो इट इज आइदर फॉर 3 to 4 months हार्डली. तो 3 to 4 months पानी मिलेगा, बाकी के मंथ्स में क्या करेंगे? सो दैट इज वाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंजर्विंग वाटर मीन्स वाटर को बचाना बहुत जरूरी है. नाउ फर्स्ट थिंग, वाटर से इरिगेशन पर इफेक्ट होता है. इरिगेशन मीन्स क्रॉप्स को जो हम पानी सप्लाई करते हैं ना, उसे इरिगेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इरिगेशन. क्योंकि क्रॉप्स में जब तक आप पानी नहीं डालोगे तब तक वो ग्रो होंगे नहीं. फार्मर्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर टू ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स को वाटर चाहिए थ्रू आउट द ईयर, जिससे उनके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो. करेक्ट. आपके घर में कोई प्लांट है तो आप उसमें रोज पानी डालते हो ना, तो ही वो अच्छे से ग्रो होता है. तो फार्मर्स को भी इसी तरह क्रॉप्स में रोज पानी डालना है, तो ही वो अच्छे से ग्रो होंगे. Therefore, we need to conserve water by building canals, dams, reservoirs and tanks. इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व मतलब बचाना, प्रिजर्व करना, फ्यूचर यूज के लिए. आगे जब बारिश नहीं होगी तब अगर हमने पानी कंजर्व किया है तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं. अगर पानी कंजर्व नहीं करेंगे तो पानी आफ्टर रेन वाटर इज ओवर द वाटर विल गेट फिनिश्ड. अगर रेन वाटर को आप बचाओगे नहीं तो वो वाटर खत्म हो जाएगा. नाउ फर्स्ट थिंग, कैनाल्स. सी आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ अ कैनाल. Okay. Canal are channels that are dug in the ground to take water from the rivers to the fields. Canals मतलब क्या है? जमीन को खोद के पानी को रिवर से फील्ड तक ले जाने के लिए एक चैनल बनाते हैं, उसे हम कैनाल कहते हैं. ये मैनमेड होती है. कैनाल मैनमेड होती है. इससे क्या होगा कि जिन फील्ड्स के आजू बाजू में पानी नहीं है उन फील्ड्स तक या उन जगहों तक पानी पहुंचाया जाए. तो इसलिए कैनाल्स बनाए जाते हैं. इन सम प्लेसेस वेल्स आर डग टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस. कुछ जगहों पर वेल्स बनाते हैं. सी आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ अ वेल. ओके, ये वेल है, कुआं. आप में से बहुत सारे बच्चों ने कुएं देखे भी होंगे, फार्म हाउस में होते हैं बहुत जगहों पर. तो कुएं में से पानी हम निकालते हैं. तो ये कुएं के अंदर पानी आता कहां से है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड के अंदर वाटर कौन डालता होगा? यस, जब रेन वाटर लैंड के सरफेस पर पड़ता है, दिस रेन वाटर इट sometimes get absorbed. Some of the water get absorbed into the ground. It penetrates into the ground. ये ग्राउंड के अंदर पेनेट्रेट होके चला जाता है अपने आप. आप जैसे फ्लावर पॉट में पानी डालोगे ना तो वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा. सेम वे रेन जब होती है तब वो ग्राउंड में से वाटर अंदर तक, जमीन के अंदर तक चला जाता है. तो ये अंडरग्राउंड वाटर बहुत सारा होता है लैंड के अंदर. तो इस वाटर को आप यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? यू हैव टू डिग द ग्राउंड. ग्राउंड को खोदना पड़ेगा. और वी कंस्ट्रक्ट वेल्स बनाते हैं, कुएं बनाते हैं. तो जब वो कुआं खोदते हैं तब अंदर से पानी निकलता है. सो दैट इज वेल. देन व्हेन अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड वेरी डीप बिलो द सरफेस, होल्स आर डग एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन टू रीच दिस वाटर. तो जब अंडरग्राउंड वाटर बहुत डीप तक चला जाता है, मतलब बहुत ऊपर के सरफेस में नहीं मिलता, बहुत डीप जाना पड़ता है, तब मशीन्स को यूज करके एकदम अंदर होल को खोदना पड़ता है. देन
ट्यूब्स आर संक थ्रू दीज होल्स, फिर उसमें से ट्यूब बड़े बड़े पाइप्स को अंदर सरफेस के ऊपर से नीचे अंडरग्राउंड वाटर तक ट्यूब्स को उतारा जाता है। ट्यूबवेल या बोर जो हम बोलते हैं, बोरवेल, ट्यूबवेल, तो इससे हम क्या करते हैं, कुएं नहीं होते हैं, बड़े बड़े कुएं नहीं होते, होल को डग करके उसके अंदर ट्यूब्स को उतारा जाता है। द अंडरग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू दीज ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक और डीजल पंप। फिर उन ट्यूब्स को पानी के सरफेस तक पानी के लेवल तक ले जाते हैं, नीचे तक, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक पंप या डीजल पंप को फिट करके उस पंप की मदद से अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर तक हम खींच के ले आते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्यूबवेल। इसे हम कहते हैं ट्यूबवेल। सी आई एम शेयरिंग अ पिक्चर। ओके, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ये ट्यूबवेल जो हम बोर भी बोलते हैं, बोरवेल, ट्यूबवेल, इससे जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब सारी की सारी जगहों पर इरिगेशन के लिए, मतलब खेतर में या फार्म में पानी देने के लिए, सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। इन सम प्लेसेस इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल्स। कुछ जगहों पर वेल्स मतलब कुएं खोदना बहुत डिफिकल्ट होता है। हियर रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स एंड इज लेटर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो इन जगहों पर बारिश का पानी जो है उसे टैंक में या पॉन्ड में स्टोर करके रखते हैं और फ्यूचर में यूज करते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमन इन साउथ इंडिया। ये टैंक या पॉन्ड जो है वो सिस्टम साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। सी आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ अ टैंक एंड अ पॉन्ड। ओके, डैम्स आर walls built across river to hold back the flow of water. Dams का मतलब क्या है? See, I am sharing a picture. Okay, so dams एक दीवार होती है जो रिवर के अक्रॉस, रिवर के बीचों बीच कंस्ट्रक्ट की जाती है टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर। होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर मीन्स वाटर को फ्लो होने से रोकने के लिए इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दीज वॉल्स हैव स्पेशल गेट्स कॉल्ड स्लूज गेट्स। इन वॉल्स में अलग तरह के गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, जिसको स्लूज गेट कहते हैं, विच कैन बी ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। इन गेट्स को कंट्रोल किया जाता है। किसके लिए कंट्रोल करते हैं? वाटर के फ्लो को रोकने के लिए या छोड़ने के लिए। बहुत सारा वाटर है तो थोड़ा खोल देते हैं तो वाटर फ्लो हो जाएगा, कम वाटर है तो बंद कर देते हैं ताकि वाटर फ्लो होके आगे ना जाए। वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स मतलब क्या है? वो एक आर्टिफिशियल लेक होता है। नेचुरली जो लेक होता है अर्थ के सरफेस पर वो नहीं, लेक जो मैनमेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, इसे हम कहेंगे रिजर्वायर। बड़े बड़े लेक्स बनाते हैं हम, मैनमेड लेक्स, तो इन्हें हम रिजर्वायर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजर्वायर्स। सो वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वायर बिहाइंड द डैम। तो डैम के पीछे का जो हिस्सा होता है वो रिजर्वायर बन जाता है, आर्टिफिशियल लेक जैसा बन जाता है, जिसमें इन पानी को स्टोर किया जाता है। Canals are dug to take this stored water to the fields where it is required. फिर इन रिजर्वायर्स में से कैनाल्स को डिग करके, कैनाल्स का रास्ता बना के उन फील्ड्स तक या उन प्लेसेस तक पानी पहुंचाया जाता है जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है। ओके, इन डैम्स वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स में से कभी कभी सिर्फ कैनाल्स नहीं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। डैम्स के पीछे जो आर्टिफिशियल लेक बनता है इसे हम रिजर्वायर कहते हैं। इनमें से कैनाल्स भी बनाते हैं और वाटर सप्लाई करते हैं फील्ड्स में, करेक्ट। फिर इन डैम्स में से एक हाइट से वाटर को नीचे छोड़ दिया जाता है गिरने के लिए।
उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। दिस इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स कनेक्टेड विद वाटर। हाइड्रो का मतलब है कोई भी चीज जो वाटर से कनेक्टेड है तो उसे हम हाइड्रो कहेंगे। बिकॉज वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इट, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाटर का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से प्रोड्यूस होती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। डैम्स ऑल्सो कंट्रोल फ्लड एंड हेल्प इन ब्रीडिंग फिश। डैम्स बनाने से फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकता है एंड हेल्प्स इन ब्रीडिंग फिश। फिशेस के लिए भी बहुत अच्छा हैबिटेट हो जाता है, अच्छे से फिश वहां पर रह सकती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? पर्पस का मतलब है कि कोई रीजन, मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे यूजेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? When dams are built to serve more than one purpose, एक कारण से नहीं बट बहुत सारे रीजंस की वजह से डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तब उन डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। सम ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया आर, अलग अलग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया के कौन कौन से हैं? भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, फराका बैरेज, सरदार सरोवर डैम, हीराकुड डैम, नागार्जुन सागर एंड इडुक्की डैम्स। ये सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, 6 है। ये सारे के सारे इंडिया के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन। फर्स्ट, भाखरा नंगल डैम। इट इज बिल्ट ऑन रिवर सतलेज इन हिमाचल प्रदेश एंड इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। ये हिमाचल प्रदेश में रिवर सतलज के अक्रॉस बनाया गया है एंड ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड ऑल्सो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। इसमें से इरिगेशन के लिए पानी भी सप्लाई होता है एंड दिल्ली के नेबरिंग स्टेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी किया जाता है। किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होगी अगर डैम में से है तो? बट ऑब्वियस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी में से जनरेट हुई है। नेक्स्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इट इज बिल्ट ऑन रिवर दामोदर। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये भी एक डैम है, ये रिवर दामोदर के अक्रॉस बनाया गया है। इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ डैम्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन टू वेस्ट बंगाल। इसमें से वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज फराका बैरेज। इट इज बिल्ट ऑन द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर के अक्रॉस बनाया गया है फराका बैरेज। इट सप्लाइज वाटर टू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। इसमें से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहां वाटर सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम। इट इज बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा। ये रिवर नर्मदा के अक्रॉस बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू ड्राई एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो ये सरदार सरोवर डैम में से गुजरात एंड राजस्थान के जो ड्राई एरियाज है वहां पर पानी सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज हीराकुड डैम। इट इज बिल्ट ऑन रिवर महानदी इन ओडिशा। ये रिवर महानदी के अक्रॉस बनाया गया है। महानदी कहां पर है? ओडिशा। एंड इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। भाखरा नंगल डैम था वो लार्जेस्ट डैम था, हीराकुड जो है वो है लॉन्गेस्ट डैम। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, लास्ट वन इज नागार्जुन सागर एंड इडुक्की डैम्स। The Nagarjuna Sagar Dam is on river Krishna and located in the border between Telangana and Andhra Pradesh. ये रिवर कृष्णा के अक्रॉस बना गया है नागार्जुन सागर डैम, और ये
तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। द इडुक्की डैम इज बिल्ट ऑन रिवर पेरियार इन केरला। रिवर पेरियार केरला में है, उसके अक्रॉस बनाया गया है इडुक्की डैम। बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट डैम्स इन साउथ इंडिया। ये दोनों साउथ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। सो यू रिमेम्बर ऑल दिस। लास्टली, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्व करना मतलब बचाना। वाटर इज वेरी प्रेशियस एंड वी शुड यूज इट केयरफुली। वाटर बहुत प्रेशियस है। प्रेशियस मतलब अमूल्य। क्यों प्रेशियस है? क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए, इफ वी वॉन्ट टू सर्वाइव, वी नीड वाटर। वी ईट प्लांट्स to get energy, but plants grow with the help of water only. If there is no water, plants will not grow. So water is very precious. We should not throw garbage in the industrial waste into river, lake and sea, as these pollute the water. So सबसे important क्या है water को conserve करने के लिए, बचाने के लिए, कि कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज में से गंदा पानी निकलता है, केमिकल वाला पानी या कुछ भी ऐसा वेस्ट है, तो वी शुड नॉट थ्रो इट इन द वाटर। उसे वाटर में कहीं भी, रिवर, पॉन्ड, लेक, सी, इनमें फेंकना नहीं चाहिए। मरीन लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर। अगर ये वाटर हम पोल्यूट करते हैं, पोल्यूट करना मतलब खराब करते हैं, बिगाड़ देते हैं, तो उसमें मरीन लाइफ मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, वो बेचारे जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सो मरीन लाइफ विल नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर। People who use polluted water for drinking or cooking suffer from many diseases. And human beings, if they use this polluted water for their routine works, means cooking, drinking, etc., then what happens? In long term, it will affect their health and they might fall ill. We should make effort to keep water clean and not wasted. तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि वाटर को क्लीन रखना है एंड वेस्ट नहीं करना है। सो ऑल दीज पॉइंट्स वी डिस्कस रिगार्डिंग वाटर। In next session, we will discuss regarding soil. So along with this session, I am sending a PDF worksheet which is fill in the blanks based. I hope you will solve it yourself. Go through this chapter, what I have done today in this session in your textbook. Read everything. You will find all the answers. Or you can also go through the video once again to find the answers. Hope you enjoyed this session. Bye for now.